Welcome, Professor Anjali Awadhya, madam. वेलकम मिथिलेश जी। थैंक यू। नमस्ते सभी को। Namaste, ma'am. Thank you, ma'am. नमस्ते मैम। हम शुरुआत करें जी मैम। जी। जी मैम 1 मिनट हमें रुकना चाहिए। ये हमारे गेस्ट तो आ चुके हैं। जी जी तो नाउ वी शुड स्टार्ट। Yeah. So welcome, Mithilesh Gupta ji, and we are going to start now because it is already 6 o'clock. And as we were discussing with our madam, that it will be mixed mode in the sense that like we can use English or Hindi, whatever is convenient to us, because all of us we are familiar with Hindi and English. There is no language barrier restriction also. And as we have already discussed that Gita Amrit series actually. So today's theme is that relevance of Gita in current age. So as discussed with our esteemed speaker, that Gita was delivered in the war field by Krishna to the Arjun, and it was the age of Dwapar, right? And but currently we are living in Kali Yuga, so there is a difference of age actually. So is it still relevant? Is it still relevant to us first? And second is that how this Gita can help to an individual or mankind. Uh, as we proceed ahead, I would like to take two examples. One is that I was fortunate to do my master's degree at Banaras Hindu University. So there is Mahamana Malvi Bhavan, where Malvi ji used to do Gita Path almost every day or so. And when I was there during 2005 to 2007, I used to visit Malvi Bhavan and attend the Gita lectures. But those golden days are gone for me in my life, and probably it may not return again, right? But inspired by the ideals of Mahamana, can we have discussion on Gita? And as Mithilesh is knowing that when he was a student at NIT Raipur, engineering student, we used to had certain discussions on Gita, informal discussions in group of maybe 10, 15, 20 students. We used to take certain topics and discuss on it, right? So that is always our inclination and preference to do it, that as and when we get chance, we discuss on Gita. So again, we are fortunate that we are getting this opportunity to have discussion on Gita with a knowledgeable person like Mithilesh Gupta ji, and he is prepared for his part. But again, I would like to add that and what is the specialty of this Gita Amrit? Okay, so my understanding is that Gita is very much like an Amrit. So if you drink Amrit, what is going to happen? You will become immortal. Immortal, you can go beyond time. This is what I understand the meaning of Amrit. So and again, in my memory, Gandhi used to tell, means if I remember properly, I read my Experiments with Truth by Mahatma Gandhi, and somewhere he has mentioned that that Gita used to guide him, and as and when he used to face any difficulty in his life, he used to read Gita, and uh, he used to say that my all the problems were get solved by reading the Gita. So definitely, and as you know, it is evident that Gandhiji, Mahatma Gandhi, he is beyond time. He is not within the purview of time, and he will be remembered forever, very much like Mahamana Malviji. So the purpose of this lecture series is to remember those ideals actually, and get benefited from the experience of learned speakers, very much like Mithilesh Gupta ji, to learn from them actually. And it is proud privilege to like have Mithilesh Gupta ji among us. And in order to take our discussion ahead, now I request the president of Mahamana Malvi Mission branch Raipur, Professor Swarnalata Saraf madam, for her welcome address. Madam, it is over to you. सो आज इस शाम में हम लोग गीता पाठ के लिए आज हमारे बीच में मिथिलेश गुप्ता जी हैं, जिन्होंने इस गीता पाठ का मनन किया है और वो मुंबई शहर को बिलोंग करते हैं और वहाँ पर अपने पाठ किया करते हैं।
वो एस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं और एस्कॉन टेम्पल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर एस्कॉन टेम्पल मतलब श्री कृष्णा टेम्पल। तो श्री कृष्णा हमारे भगवान थे जिन्होंने जब महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हम जानते हैं कि हम आपस में ही अपने ही घर के लोग थे, भाई भाई ही थे, उनके बीच में हो रहा था। तब उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया था कि आपको किस चीज के लिए ये महाभारत के युद्ध में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने उपदेश दिए थे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश किए थे, उनका एक संकलन हमारे गुरु व्यास जी के द्वारा उसको संकलन किया गया और उसमें जो बातें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी, वो जो जिस तरीके से कही गई, जिस समय कही गई, जिस सिचुएशंस में कही गई, जो कंडीशंस बनी, उन सब वही सेम कंडीशंस जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपनी दुनिया में देखते हैं, आज हम अपनी, तो उसका जो भाव है हर इंसान अलग तरीके से बना हुआ है और हम कलयुग में रह रहे हैं। और गीता जो बनाई गई थी वो द्वापर युग की है। उस समय पर ये कहा गया था और वो उसको जो संकलन किया गया व्यास जी के द्वारा किया गया था। तो आज भी उसकी जो महत्व है वो आज भी बना हुआ है। वो अगर हमारे यूथ इसको अपनी जिंदगी में इसको उतारते हैं, उसके भाव को समझते हैं, तो वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं विद देयर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम सब जगह हम देख रहे हैं कि भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई गई है और हमने अभी ही कल 29, आज है 30, तो आज हम लोग 2 दिन तक हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हुआ कि नेशनल एजुकेशन में क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर ये हमारे यूथ में आए। तो गीता एक बहुत बड़ा जो गीता का जो भाव है वो हम अपने यूथ में प्रचार प्रसार करें और उनको बताएं कि इसके भाव को आप अपने में धारण करें और इसको अपनी लाइफ में लेके आए, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में सफल रहें। आज जब हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में जो भी उनको उनकी वर्किंग है, उनकी एक्टिविटी है, उनकी थिंकिंग है, सब जड़ रूप में है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी की कमी है, तो वो अपने आप को बहुत सुखी और पीसफुल नहीं रख पाते। तो जिससे कि उनकी पूरी कंप्लीट जो उनकी भाव है उसमें उनको पीस चाहिए, जिससे कि वो 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और समाज कल्याण में अपने को लगा सके। तो इस चीज के भाव को जब वो गीता का मनन करेंगे, उनके उपदेशों को मनन करेंगे, तब वो इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए हम महामना मालवी मिशन में मालवी जी के द्वारा जो हमारा ये एल्युमिनी एसोसिएशन उनकी याद में जो बीएचयू के एल्युमिनीज हैं उन्होंने बनाया, और मालवी जी इसका बहुत डेली गीता पाठ करते थे। और जैसा कि हमारे मानवी जी, हमारे सेक्रेटरी जी ने बताया कि उसमें वो जाते भी थे। मुझे जाने का मौका तो नहीं मिला, मैं भी आईटी से पढ़ी थी, लेकिन मौका तो नहीं मिला। लेकिन बनारस शहर की होने के नाते मैं और बनारस के विश्वनाथ टेम्पल के पास चौक में रहने के नाते डेली वहाँ जो गीता पाठ होता था उसको सुनने का जरूर मौका मिला और डेली मैं जाती भी थी वहाँ पर। तो उसके भाव को समझा है, जाना है, और उसको जितने लोग इसको उतार सकें, तो मालवी जी के इस प्लेटफॉर्म से, बीएचयू एल्युमिनी के प्लेटफॉर्म से जो हम उनका जो मिशन था उसको हम प्रचार करेंगे, जिससे हमारा भारत देश वर्ल्ड में एक राज कर सकता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि हम 10 से 5th इकोनॉमी में आ गए और 5th से 3rd के डायरेक्शंस में जाना है। तो इसको लीड करने के लिए हमारे यूथ को पावरफुल होना पड़ेगा और मेंटली पावरफुल होना पड़ेगा। केवल फिजिकली से काम नहीं चलेगा, मेंटली जब वो पावरफुल होंगे तो ही वो विजय पा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इस रायपुर के प्लेटफॉर्म से ये शुरुआत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो प्रांत है, उस छत्तीसगढ़ प्रांत में बहुत सारे भंडार हैं जिसको हमारे यूथ इसको यूटिलाइज करें और उसका सही यूटिलाइजेशन करें। और इसके लिए हमने बहुत सही पर्सन को चुना है जो कि यहीं से पढ़ के निकले और यहीं पे रहे, तो वो इस यहाँ की सिनेरियो को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के यूथ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो अपने डेलिब्रेशंस को उनसे जोड़ करके हमारे यूथ के बीच में जो भी रखेंगे वो उनको जरूर एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे। तो इसी विषय के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ और जो हमारे मिथिलेश जी आए हुए हैं, हमारे गेस्ट, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़े और क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। मिथिलेश जी प्लीज। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। तो बेसिकली आज के डेट में भगवद गीता वैसे तो वेल नोन है, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं, फिर भी इस तरह के जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जब उनको पढ़ने की बारी आती है तो हम लोग अपने एक माइंड में पहले ही एक खिड़की बन जाती है जहां पर हम ये सोचते हैं कि दीज आर रिलीजियस बुक। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आपने जैसा बताया कि नई पॉलिसी आ रही है, तो एजुकेशन सिस्टम में चूंकि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं प्रमोट कर सकते, तो इस तरह के एक सिनेरियो क्रिएट होता है। बट फिर भगवत गीता इसी पॉइंट पे सारे स्क्रिप्चर से सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि इस बुक में, इस ग्रंथ में, अभी से मैं ग्रंथ कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं अभी पूरे जो आगे के 40-45 मिनट होंगे, इसमें मैं बीच बीच में बुक वर्ड यूज करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट इट एज समथिंग रिलीजियस टेक्स्ट। तो ऐसे सिनेरियो में ये सबसे आगे खड़ी होती है, क्योंकि ये हमें किसी रिलीजन के पर्टिकुलर इस सिद्धांत में नहीं बताती, बल्कि ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, उसके सिद्धांत पे हम देखते हैं कि भगवद गीता हमें क्या बता रही। सो मैं एक स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगा। जस्ट कुछ समय पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है। तो चेन्नई में एक सज्जन व्यक्ति, चेन्नई की जो समुद्र किनारे थे, वहां पर एक सज्जन व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर भगवद गीता पढ़ रहे थे। इसी समय पर एक युवा छात्र थे, किसी कॉलेज के थे, तो वो उस जगह पर आए। उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बड़े भद्र सज्जन लग रहे हैं, सो व्हाई आर यू रीडिंग भगवद गीता, आप ये भगवद गीता क्यों पढ़, इस एज में, मतलब आज के जमाने में भगवद गीता क्यों पढ़ते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि उस जो सज्जन थे, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप क्या करते हैं। तो उस छात्र ने बताया कि मैं यहाँ पर विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई करता हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टू बी अ साइंटिस्ट। तो उन सज्जन ने उनका उत्तर तब तक नहीं दिया था, और ये फिर से पूछने लगे कि आपने बताया नहीं, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं। हमें तो देश दुनिया में आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और आप ये पुरानी चीजों को लेकर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को तो चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, इस तरह की चीजें आज प्रमोट होनी चाहिए। सो कुछ ऐसी बातें हो रही थी, बट आंसर फिलहाल तब तक उन्होंने नहीं दिया था। तभी वहां पर दो बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, जैसे जो भी मर्सिडीज उस समय पे जो भी गाड़ी होगी, वो पहले की बात है। तो वहां से कुछ ब्लैक कमांडोज उतरे, एक सोल्जर आया, उसने जो व्यक्ति बैठे थे उनको उन्होंने सैल्यूट किया, और फिर उनसे आग्रह किया कि आप आइए, बैठिए गाड़ी में। तो ये छात्र जो था, ये घबरा गया कि ये है कौन, मैंने शायद किसी गलत व्यक्ति से तो नहीं पूछ लिया, कुछ अभद्रता तो नहीं कर दी, शिष्टाचार मैंने पालन करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो इसलिए उन्होंने फिर जाके पूछा कि ये है कौन, इनके बारे में। तो वहां पर कोई व्यक्ति था नहीं जिनसे वो पूछ सकते थे किसी के बारे में शायद। तो उन्होंने सोचा कि चलिए इन्हीं से ही पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आपने बताया नहीं, आप इसके बारे में, गीता के बारे में, खैर बट आप हैं कौन, मुझे वो नहीं, वो जानना। तो वो कहते हैं कि मैं ही विक्रम साराभाई हूँ, और देखो भगवत गीता हम पढ़ते हैं क्योंकि भगवत गीता इज नॉट जस्ट समथिंग रिलीजियस बुक, इट्स एक्चुअली साइंस। उस छात्र का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आज हम जानते हैं कि भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और उन्होंने बाद में इस घटना का जिक्र किया था अपने बुक में, गीता अ साइंस। उन्होंने एक बुक लिखा है, और वहां पे प्रेजेंट करते हैं कि हाउ भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस टेक्स्ट और समथिंग लाइक अबाउट हिंदुइज्म, और कुछ सनातन धर्म के बारे में नहीं है, लेकिन हम मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जिए, ये इसके पीछे क्या साइंस है, एक अच्छा जीवन जीने के पीछे साइंस क्या होना चाहिए। सो उसको उन्होंने वहां पे मेंशन किया है। खैर ये जस्ट एक शुरुआत था, मैं जस्ट बताना चाहता था व्हाई हाउ इट इज रिलेवेंट, बिकॉज टॉपिक इज लाइक दैट, इतना उपयोगिता है आज भगवद गीता की हमारे इस समय में। तो मैं जस्ट
2 लाइन से उसे शुरुआत करूंगा। क्योंकि हम कभी भी इस तरह से कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो थोड़ा हम अपने जो गुरु हैं, क्योंकि ग्रंथ हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उनको थोड़ा ध्यान करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सो भगवत गीता, फिर से हम बात करते हैं भगवत गीता के बारे में। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि कहाँ बोली गई, कब बोला गया। सो यही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है कि भगवत गीता कोई क्लासरूम में बातचीत नहीं हुई थी। इट्स नॉट अ क्लासरूम डिस्कशन, इट वाज अ डिस्कशन ऑन अ वॉर फील्ड। वॉर फील्ड में क्या होता है, किस तरह की सिचुएशन है। सो एवरीबडी इज टेंस्ड, सभी लोग वहां पर उतावले हैं लड़ने के लिए। सो एवरीबडी इज लाइक काइंड ऑफ, अभी हमको युद्ध करना है, फाइट करना है। सो देर इज नो काइंड ऑफ पीस और समथिंग, people are prepared to discuss on some special subject matter, कुछ शांति की बात करेंगे, ऐसी कुछ घटना ही नहीं थी वहां पर वहां पर भगवत गीता कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, सो फर्स्ट रिलेवेंस विच वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, एनी पर्सन हु इज एट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस, कितना भी परेशान हो, कितना भी तकलीफ में हो, कितना भी उसकी मानसिक प्रताड़नाएं झेल रहा हो, ऐसी स्थिति में भी वो भगवत गीता का नॉलेज ले सकता है। सो दिस इज द सिंबलिज्म विच कृष्णा गेव टू अर्जुन। भगवान, वो तो कृष्ण है, वो तो अर्जुन को कभी भी दे सकते थे, पहले भी इंफॉर्मेशन, गीता का ज्ञान सुना सकते थे। देखने वाली बात ये भी है कि पूरे महाभारत एपिसोड में अर्जुन ने कई बार युद्ध लड़े, कई बार युद्ध लड़े, और महाभारत से बड़े युद्ध लड़े अकेले। एक महाभारत से भी पहले एक युद्ध था जिसमें उसने अकेले सबको हराया था, जो कि विराट युद्ध कहते हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। लेकिन उसके बाद अब महाभारत युद्ध में इतना क्यों घबरा रहे हैं कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू परफॉर्म माय ड्यूटी। सो ये जो ड्यूटी नहीं परफॉर्म करने वाली बात है, सो ये बताता है एस्केपिस्ट मेंटालिटी। सो जैसे कि आजकल लोग अपने अपनी ड्यूटी से दूर भागते हैं, सो दैट इज एस्केपिस्ट मेंटालिटी। तो ऐसे मेंटालिटी वाले लोग आज हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम यूथ तो इसी प्रकार के, वो कुछ काम करने जाते हैं, वहां पर उन्हें वो कार्य नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, टेंशन आ जाता है। और उसके बाद फिर कई लोगों को हमने देखा है, स्पेशली कॉलेजेस में, वो सुसाइड वगैरह करते हैं। तो सुसाइड करना इट इज अ काइंड ऑफ एस्केपिस्ट मेंटालिटी। अर्जुन का युद्ध नहीं करना और किसी स्टूडेंट का जाके सुसाइड करना, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। बिकॉज उस जमाने में ये समझा जाता था कि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध नहीं कर रहा है मतलब वो मर गया है, उसने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं की, वो ही इज ऑलमोस्ट डेड, उसने सुसाइड ही किया है। सो अर्जुन वाज आल्सो रेडी टू डू समथिंग काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट द स्टूडेंट्स टुडे आर डूइंग। अब बच्चों को, छात्रों को समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट काइंड ऑफ जस्ट वन थिंग। एक एक चीज में अगर हम फेल हो गए या चीज वहां पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सो वो चीज एंड नहीं है, अभी लाइफ तो बहुत बड़ी है। सो दिस इज व्हाट द twist here, which we can see that how Arjun is symbolically representing a student of today's era. So I'll present the other thoughts कि वो कैसे और relevant है, but वो particularly उस प्रकार के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो मैंने पहला रिलेवेंस बताया था, उसमें शुरुआत किया था कि किस तरह से वॉर फील्ड में। सेकेंड रिलेवेंस पॉइंट अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जैसे अर्जुन एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टूडेंट की स्केपिस्ट मेंटालिटी को। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो स्टूडेंट, वो अर्जुन वहां पर बता रहा है। अर्जुन सेकेंड चैप्टर में कृष्ण को कहते हैं कि प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। व्हाट इट मीन्स कि अगर कोई इस तरह के फेजेस को, कोई लाइफ के इस फेज में है जहां पर वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जहां पर उसके लिए ये है कि अभी लाइफ खत्म कर देनी चाहिए, एंड कर देनी चाहिए, so that is not the end. We should approach a person and ask for his guidance. हमको ढूंढना चाहिए ऐसा आदमी। हो सकता है अपने बगल में ही हो सकता है पेरेंट्स ही हो सकता है उसके टीचर्स हो, but we should search someone who can guide me. This is the second relevant point for any student. Now we'll go to other aspects of भगवद गीता। अभी तो हमने सिर्फ सिनेरियो को देख के उससे रिलेवेंस समझा, अब जो बातें उसमें हो रही है उसको देख के हम रिलेवेंस समझते हैं। तो जनरली आज की डेट में क्या है कि लाइफस्टाइल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता एक्चुअली मैनुअल है, इट्स अ गाइड बुक हाउ टू लिव अ लाइफ।
तो लाइफस्टाइल के बारे में बताई गई इसमें बातें। तो लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए, तो पूरे भगवद गीता में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें एक तरह से समझ में आता है कि इट्स टॉकिंग अबाउट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारी जो लाइफ है वो सिंपल होनी चाहिए, बट हमारे थॉट्स हैं वो बड़े शुद्ध होने चाहिए, डिवाइन क्वालिटीज होने चाहिए। हमको एक हमारी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना चाहिए, इस तरह से हमारे विचार होने चाहिए। ओके, बट आज की डेट में क्या हो रहा है, हम किस तरह से जी रहे हैं, अगर जो लोग सामान्य अगर जिंदगी देखें तो दे आर सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। दे आर सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग फॉर द लाइफ कि कोई कुछ होने वाला है, भविष्य में कुछ करना है। हम सिर्फ बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जीवन को किस तरह से खुश बनाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, इस तरह का हमारा लाइफ चल रहा है। सो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हमने डेवलप कर लिया, सो दैट आई फील कि मैं अपने आप को कुछ एंजॉयमेंट दे रहा हूँ, और मैंने अपना स्टेटस समाज में, सोसाइटी में, मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे मेरा एक स्टेटस बन रहा है। तो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। पीपल आर नॉट नाउ लिविंग इन अ काइंड ऑफ सिंपल वे। उससे क्या प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे हम याद करें 1920s 1930s 1900 के समय में, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब वो पीक पे था, तब वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। अब यहाँ पे चेंजेस चालू है, टेक्नोलॉजी थोड़ी ग्रो होने चालू हुई। उससे पहले तक रिसर्च वगैरह हो रहे थे, अब टेक्नोलॉजी थोड़ा बूम करने लगा। सो इसके साथ साथ 1920s 1930s के बाद से ही टाइम मैनेजमेंट के सेमिनार्स होने चालू हुए। अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम टाइम सेविंग गैजेट्स निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइम सेविंग गैजेट्स, बट अब जब जैसे जैसे हम टाइम सेविंग गैजेट्स ढूंढ रहे हैं, हमारे पास अब टाइम मैनेजमेंट के सेमिनार फिर आने के बाद हमारे पास वो समय जा कहाँ रहा है, ये कैसा जीवन चल रहा है। बिकॉज वी आर लिविंग इन आर्टिफिशियल लाइफ एंड वी आर लैकिंग टाइम। हम इतने गैजेट्स बनाने के बाद भी, इतने सारी चीजें होने के बाद भी हमारे पास समय नहीं है अपने परिवार वालों को देने के लिए, समय नहीं है खुद के लिए, खुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी टाइम नहीं है। मैं आज ही बात कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनका भी जॉब शिफ्टिंग हो रहा है, जैसे वो हैदराबाद में थे, अभी वो उदयपुर जाने वाले हैं। तो वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाता है हमें थोड़ा अपने लिए। और हम जब घर वालों से बात करते हैं तो वहां पर भी समस्या रहती है कि 4-5 दिन में कभी कभी बात होती है, वो भी काफी स्ट्रेसफुल माइंड में हम रहते हैं, तो समय नहीं मिल पा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट लाइफस्टाइल जिस तरह से उनकी चल रही है, मैंने उनको सजेस्ट किया, ओके कोई बात नहीं, आप अपने पूरा जो डेली शेड्यूल है उस शेड्यूल को प्रॉपरली मैनेज कीजिए, और जहां जहाँ पे आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा इधर वेस्ट हो रहा है, उस चीज को आप थोड़ा कोशिश करो ध्यान देने का। तो मैंने उनसे डिस्कशन में पाया कि लोगों के पास समय नहीं है। अब जिसके पास खुद के लिए समय ना हो, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा। जिसके पास अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए टाइम नहीं है, अच्छा ठीक है, यहाँ तो इनकी शादी नहीं हुई, ये तो अभी 2 साल हुए इनकी जॉब लगे हुए, लेकिन अगर इनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वाइफ के लिए टाइम नहीं है, फिर कैसे करेंगे। वो कितना फ्रस्ट्रेशन उनके लाइफ में आएगा। सो इस तरह का लाइफस्टाइल आज बन चुका है, उसको हम चेंज ज्यादा नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंडसेट। तो इसीलिए मैं आज की सिचुएशन के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा कि क्या हो रहा है और उसको कैसे बचे। तो जितना समय बच सकता है हम उससे बचाएं। बाकी आजकल का यूथ, जैसा कि मैंने देखा है अपने कॉलेज टाइम में, कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट गलत चीजों में भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिल सकता, बिकॉज हमारी आदतें ही ऐसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम उससे बच नहीं सकते। से फॉर एग्जाम्पल अभी 2016-17 से जब से फ्री इंटरनेट मिल रहा है, जियो ने जब से प्रोवाइड किया है, तब से हमारा टाइम किधर जा रहा है हमें भी नहीं पता। आज लोग व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम पे इतना समय निकल जाता है, उन्हें भी समझ नहीं आता कि मैं इतना टाइम वेस्ट कैसे कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, बिकॉज दैट इज विदाउट गाइडेंस ऑफ सच अ वंडरफुल बुक लाइक भगवद गीता। तो हमें ऐसे चीजों से गाइडेंस लेना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले बोला कि उस स्टूडेंट को, ऐसे लोगों को हमें एक गाइड को ढूंढना चाहिए। सो इफ दैट गाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, अगर उसको नहीं मिल रहा है कोई व्यक्ति, तो कम से कम ये बुक है, इस बुक को पढ़ के वो अपने आप को
समझा सकता है, बता सकता है कि मुझे किस तरह से जीना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने लाइफस्टाइल का बताया, सेकंड पॉइंट अभी मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। सो बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंटेंट। पहले मैंने जो 2 पॉइंट बताए थे वो मैंने इसके सिनेरियो पे थे, अब मैं पॉइंट्स जो बता रहा हूँ उसके कंटेंट। सेकंड पॉइंट इज अबाउट लीडरशिप क्वालिटी। सो कृष्णा व्हेन ही स्पीक्स टू अर्जुन, जब वो अर्जुन से बात करते हैं तो वो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है अर्जुन तुम ये कर लो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहां पर कृष्ण पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि तुम जो करोगे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। वो उनको बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अर्जुन वहां पे एश्योर्ड होता है। सो इफ वी आर गाइड, अब यहाँ पे रिलेवेंस समझते हैं कि जो गाइड है उसको किस तरह से होना चाहिए। तो इफ वी आर गाइड सो वी हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन टू अर्जुन, मतलब टू स्टूडेंट। जैसे अर्जुन को कन्विक्शन मिला, इतना कन्विक्शन मिला कि जिसने युद्ध करना छोड़ दिया था वो सडनली 1 घंटे बाद युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो बोल रहा है कि आप जो बोलोगे वो करूंगा, आपने जो बोला वो वही करना है, अभी मुझे और कुछ नहीं करना है। तो कभी कभी लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कृष्णा ने उसको वायलेंस के लिए भड़काया था, इस तरह से देखो भाई ये तो गलत चीजें हैं, अच्छा खासा युद्ध नहीं लड़ रहा था, शांति से बैठ रहा है। बट ऐसा है कि उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कोई किसान अपने खेत में जो वीड्स है, मतलब फसल के साथ में खरपतवार बोलते हैं वीड्स, अगर उन वीड्स को ना उखाड़े तो फिर उसकी खेती तो बर्बाद हो जाएगी। तो अगर समाज में गलत लोग हैं तो उस जमाने में जो गलत लोग को पनिशमेंट देने का सिस्टम वही था। आजकल हमारे पास कोर्ट है, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं था, तो इसलिए क्षत्रिय उस प्रकार से कार्य करते थे। तो अगर अर्जुन ऐसा कार्य नहीं करता है तो फिर तो वो खुद ही समाज में गलत चीज फैला रहा है। तो दैट इज नॉट द प्रॉपर कोड। द प्रॉपर कोड एट दैट टाइम, जो कि द्वापर युग के समय में, व्हाट वाज रिलेवेंट एट दैट टाइम, टू फाइट। नाउ एट आवर टाइम इट्स नॉट रिलेवेंट टू फाइट। यस वी हैव टू फाइट विथ आवर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे भीतर जो द्वंद्व चल रहा है उससे लड़ना है। हमारे लिए अभी नहीं है कि चलो 2-4 को हम मार के आए, मतलब कृष्ण ने बोला है गीता में चलो लड़ो, तो दैट इज नॉट अवर ड्यूटी। कृष्ण इज ऑलवेज टेलिंग जस्ट फाइट बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी। आपका कर्तव्य है, इसलिए आप लड़ो। ये नहीं कि आपको कोई दुश्मनी है, कोई दुर्योधन ने कुछ गलत किया। कहीं पे भी गीता में ऐसा नहीं आता है कि दुर्योधन ने या बाकी लोगों ने कुछ गलत किया इसलिए मारो। वहां बार बार कह रहे हैं बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, सो डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं जो पॉइंट में, ये मैंने बात बताई लीडरशिप की कि हाउ ही इज कन्विंसिंग। आगे बात करते हैं कर्म योग के बारे में, बिकॉज यहीं से अब आता है ड्यूटी के बारे में। व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क, आज हम लोग कोई भी काम करते हैं, सो हमारे काम करने के पीछे मोटिवेशन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अगर हम मोटिवेशन देखते हैं तो उनका मोटिवेशन होता है या तो आउट ऑफ फियर या तो आउट ऑफ डिजायर। उसको कुछ चाहिए या तो वो डर रहा है इसलिए वो कर रहा है। But hardly there are very few people who are working because of feeling that this is my duty. वो अपना कर्तव्य समझ के वो कार्य कर रहा है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। यही कर्मयोग का सिद्धांत। तो दैट इज हायर पर्सपेक्टिव कि कर्तव्य समझ के कार्य करना। एक्चुअली जिंदगी ऐसी हो गई कि आजकल लोग जिम्मेदारी चाहते नहीं, आजकल लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। मैं थोड़ी कुछ ऐसी बातें करूंगा, हो सकता है आप लोग को थोड़ा अजीब लगे कि ये गीता के रेलेवेंस में कहाँ से आ गया। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन माई, मतलब मैं अपने एज के लोगों के साथ में जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से मैरिज या फिर लिव इन रिलेशनशिप या फिर जो भी उनके बीच जो रिलेशनशिप बनता है अभी आजकल बॉयज गर्ल्स का, तो इसके पीछे का जो सिद्धांत मेनली अभी इनका जो फिलोसफी क्या चल रहा है कि वी जस्ट हैव टू एंजॉय, वी डोंट वांट टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप की, वो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बस एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कॉलेज को भी एंटरटेनमेंट हाउस बना रखा है, उन्होंने घर को भी एंटरटेनमेंट हाउस बना रखा है, उन्होंने जॉब को भी एंटरटेनमेंट हाउस बना रखा है। वो अपने लाइफ के हर फेज को एंटरटेनमेंट हाउस बना के रखते हैं। और चूंकि एंटरटेनमेंट हर जगह है नहीं, देर आर सर्टन रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, बट स्टिल वी हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। और चूंकि ऐसा होता नहीं, इसीलिए आज के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लोगों में द्वंद है। हमारे पेरेंट्स हैं, हमने देखा है कि घर में कभी झगड़े होते भी थे, बट कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि दोनों के बीच में इतना तकरार हो कि वो लोग अब साथ नहीं रहेंगे।
लेकिन अब यहाँ पे 2-2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में डाइवोर्स केसेस आते हैं. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? बिकॉज nobody want to take the responsibility. सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, बट भगवद गीता टॉक्स अबाउट दैट यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज इट इज योर ड्यूटी. अगर कोई मैरिज करता है या शादी करता है या कोई भी रिलेशनशिप है या कहीं कोई जॉब करता है, एग्जाम्पल लेते हैं जॉब का. जो स्टूडेंट आए थे, मैं उन्हीं की बात करता हूँ. उनके माइंड में ये रहता है कि जब हम जॉब करेंगे तो हम कुछ हम तो एंजॉय करेंगे, पैसे मिलेंगे, हम अपनी लाइफ खुद जिएंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ. बट फिर वहां पे भी वो अगर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, तो जो एक 9-10 घंटे का जो ड्यूटी पीरियड है, उस समय पे उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है. दिस फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन इज कमिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. लाइफस्टाइल खराब है इसलिए टेंशन है, हमको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा इसलिए टेंशन है, हम क्योंकि आउट ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हमको बस एंटरटेनमेंट चाहिए इसलिए टेंशन है. हर चीज में टेंशन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो फिर हम करें क्या? फिर तो यही ऑप्शन बचता है, हटाओ सब खत्म करते हैं, मैं अपने आप को ही खत्म कर देता हूँ, फिर क्या बचता. देयर कम्स द फोर्थ रेलेवेंस पॉइंट ऑफ द भगवद गीता. भगवद गीता सेज यू आर नॉट दिस बॉडी. आप अपने बॉडी को खत्म करके कुछ नहीं मिलेगा. आपने सोचा कि भाई बॉडी खत्म, मैंने मार दिया अपने आप को, हो गया. कृष्णा सेज दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर एक्चुअली द स्पिरिट सोल. so you are possessing the body. तो दिस इज योर ट्रू आइडेंटिटी. बिकॉज हम बचपन से अलग अलग बॉडी में ट्रेवल करते हुए अभी इस बॉडी में मैं हूँ. मैं जो छोटा था तो उस समय जो बॉडी था मेरे पास, वो बॉडी आज नहीं है. अगर कोई इस इतना भी समझ जाए कि आई एम नॉट एक्चुअली द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, सो आई हैव सर्टेन हायर प्रिंसिपल्स टू फॉलो. मुझे अपने जीवन में सिर्फ इतने में ही नहीं संतुष्ट रहना है कि हाँ बस एंजॉय कर लिया, एंजॉय कर लिया. हर चीज के पीछे एंजॉयमेंट ही ढूंढ रहे हैं. वो अच्छा है नहीं है ये हमें नहीं पता, बस एंजॉय ही करना है. दैट इज द रॉन्ग पॉइंट. So establishing the true identity is another aspect of Bhagavad Gita. This is coming from the fourth point from the content. तो इसमें क्या बताते हैं? इसमें ये बताया जाता है कि how when Krishna says that you are not the body or spirit soul, तो इसमें पूरा उनका जो फोकस आता है, वो फोकस ये रहता है कि तुम सिर्फ इसलिए मत लड़ो कि इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गलत किया. डोंट बिकम सेल्फिश, बिकम सेल्फलेस. Because they are the problem of society, that's why you should fight. And you are not the body or spirit soul. So हमको यहाँ पे अपना perception selfishness से लेके selflessness पे आना है. So that is what Bhagavad Gita is all about. From starting, Arjun is selfish. मैं नहीं लड़ूंगा. क्यों नहीं लड़ोगे? नहीं, मुझे फिर आप अर्जुन के रीजन पढ़िए वहां पे गीता में, क्या क्या रीजन है. अरे मैं लड़ा, सब मर गए, तो फिर मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? सेल्फिशनेस. क्यों नहीं लड़ोगे? मैं अपने रिलेटिव्स को मार के कैसे सुखी रहूंगा? अगेन सेल्फिशनेस. मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दादा हैं, गुरु हैं, हाउ विल आई फाइट? इज अगेन सेल्फिशनेस. व्हेनेवर एनी पॉइंट कम्स इन फ्रंट ऑफ अ ड्यूटी, हमारे कर्तव्य के सामने कोई ऐसी चीजें आड़े आती है जो कि गलत है, तो वो हमारे लिए एक तरह से सेल्फिश एक्टिविटी है. अगर कोई जज कोर्ट में किसी प्रकार से कोई डिसीजन लेने के पहले अगर वो ये सोच ले कि ये तो मेरा रिलेटिव है, ओके ठीक है, मैं इसका जजमेंट चेंज कर देता हूँ, ही सेल्फिश. कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट बिकम सेल्फलेस. सो एट द एंड अर्जुन इज बिकमिंग सेल्फलेस. इज द फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, conflict resolution. Arjun is so much in confusion that he says specifically in chapter 2 verse number 7 that Krishna, I am not understanding anything in my life. ये मैंने पहले रिपीट किया है, बट इसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर सेंस में बता रहा हूँ कि कैसे कंफ्यूजन होने से गाइड की आवश्यकता है. So that time Arjun says that I am totally confused, Krishna, and you only can help me. Please guide me. मैंने जो प्लीज गाइड में पहले बोला था वो वापस से कह रहा हूँ, तो प्लीज गाइड मी. तो उसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे जो टीकाएं होती हैं, इस टीकाओं में कई सारे आचार्यों ने ये लिखा है कि हमारे जीवन में जब जब कोई परेशानी आती है, उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ही किसी टीचर के पास जाना चाहिए. वी शुड गो टू अ टीचर. और टीचर ऐसा होना चाहिए जो हमसे कॉन्शियसनेस में, हमसे लेवल में ऊपर हो. अगर मैं किसी दोस्त के पास गया, उसके पास जाके मैं कह रहा हूँ भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ हेल्प कर, तो वो किस प्रकार का गाइडेंस देगा? वो बोलेगा कोई बात नहीं, होता रहता है अपने साथ.
बट अ प्रॉपर टीचर विल अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक्चुअली में सॉल्व करेगा. सो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज अ पॉइंट हियर, जो कि भगवत गीता है. अच्छा, मैंने इसका काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है. हालांकि मैं ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, या फिर मैं बार बार एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं करता. बट कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स आए थे, और उसमें से एक स्टूडेंट था, वो मुझसे उसने प्रश्न किया कि मैं क्यों बिलीव करूं गीता पे. मैं अपनी लाइफ ऐसे भी जी सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट साथ ही साथ अपने लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए आपको गीता थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट. उसने बोला क्यों. मैंने कहा क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भगवत गीता में है. उसने बोला ऐसे कैसे मिलेगा. मैं बोला आपको आपको लाइफ में क्या परेशानी आ रही है, जस्ट जस्ट थिंक आउट एंड टेल. तो उसने उस समय पे उसने मुझसे शेयर किया कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, बट मैं कभी उठ नहीं पाता, 8 बजे उठता हूँ. क्या करना चाहिए, क्या भगवत गीता में इसके कोई आंसर है. मैंने कहा ढूंढते. सो मैंने भगवत गीता लिया, जस्ट मैंने रैंडमली एक पेज ओपन किया और मैं एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया. ये एक्चुअली मैं, देखिए मैं भगवत गीता हाथ में, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ. सो वहां जब मैंने पैराग्राफ पढ़ना चालू किया, उस पैराग्राफ का स्टार्टिंग हुआ इस तरह से लाइन से कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते. तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ. हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं. कभी हम अ, अपने प्रॉपर चेतना में रहते हैं, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो अच्छे काम करते हैं, कभी हम बुरे काम करते हैं. अगर हमें चाहिए कि हम एक प्रकार से एक स्थान में, एक स्थिति में स्थिर रहें, अगर आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को जो यहाँ पर इस तरह से बताइए कि कृष्ण को, जैसा कृष्ण बता रहे हैं गीता में, तो जो कृष्ण के उपदेश हैं उनको एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे. तो इस तरह से उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड. हम लोग को अपने माइंड को अगर प्रॉपरली सिचुएट करना है, तो हमको उसको इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए. तो मैंने बोला क्या समझे इस पैराग्राफ से. तो उसने बोला हाँ, आंसर तो मिल रहा है कि अगर माइंड को स्थिर करना है, एक्चुअली मन को स्थिर करना ये बात है. जो सिचुएशन है हमारा, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं, पर 6 बजे क्यों नहीं उठ पाते. कभी कभी होता है. तो स्थिर क्यों नहीं होता हमारा, मेंटेन क्यों नहीं होता, हम अप डाउन होता है, हम मेंटेन क्यों नहीं होता. बिकॉज आवर माइंड इज डिस्टर्ब. तो माइंड जब हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो दिस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ माइंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ माइंड, जो कि आज की डेट में हम लोग इसको गीता क्यों पढ़ें. तो सिंपल सा आंसर दे सकते हैं किसी स्टूडेंट को, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होगा. ये भी अगर मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं है. माइंड का मैकेनिज्म समझते हैं गीता के अनुसार. यहाँ पे बताया गया है कि एक रथ है, ये जो हमारा बॉडी है एक रथ के समान है. एग्जाम्पल इसमें सभी. सो द बॉडी इज चैरियट, और इसमें जो पैसेंजर बैठा है वो पैसेंजर सोल है. जो ड्राइवर है वो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है. और इस रथ के 5 घोड़े हैं. ये 5 घोड़े हमारे 5 सेंसेस हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा. आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं, ये उसके घोड़े हैं. और इन ज्ञानेंद्रियों को जिस रस्सी के माध्यम से बुद्धि खींच रही है, वो रस्सी है मन. अच्छा, बुद्धि मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है. ये उसमें सिस्टम ऐसा बताया गया है कि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए आइडियली. होता क्या है हमारे साथ कि माइंड के पास इन 5 सेंसेस के थ्रू ऐसे ऐसे इनपुट आते हैं कि माइंड उसको प्रोसेस करके इंटेलिजेंस को ही सुला देता है. तुम साइड रहो, बुद्धि को ही, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. बुद्धि बोलता है तुम बैठो, मुझे चलाने दो. तो अगर ड्राइवर ने रस्सी हाथ से छोड़ दिया, तो आपको क्या लगता है रथ किधर जाएगा. वो कहीं नहीं जाएगा. उसके डायरेक्शन यहाँ वहां जाएंगे, वो रथ ही, वो चैरियट ही कहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगा. तो इस प्रकार का हालत हमारे जीवन के साथ डेली हर सेकंड हो रहा है, क्योंकि हमारा माइंड इसी तरह से अनियंत्रित है, डिस्टर्ब्ड है. और हमने अपने इन 5 सेंसेस को खुली छूट दे के रखी है कि जो चाहिए, जो देखना है, जो सुनना है, जो खाना है, हम उस तरह से. तो चूंकि हमारे इनपुट्स गलत है, इसीलिए हमारे आउटपुट्स गलत है. आप अगर आप सोचे कि कोई व्यक्ति गलत काम क्यों करता है, क्योंकि वो गलत चीज लेता है. अगर किसी की परवरिश अच्छी हो,
तो वो देता भी अच्छी चीज है समाज को, लेकिन कोई गलत चीजें ले रहा है तो वो गलत चीजें दे रहा है। कैलकुलेटर में गलत इनपुट डालेंगे तो सही आंसर कैसे देगा? सीधी सी बात है। सो माइंड इज अ प्रोसेसर, वो प्रोसेस कर रहा है, जैसा मिल रहा है उसे इनपुट और वैसा फिर वो आउटपुट प्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट माइंड मैकेनिज्म इज। लेकिन मन को हमें बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम इधर गाइडेंस, या तो हमारे सुपीरियर के गाइडेंस से मिलता है, या तो हमें इस प्रकार के जो बुक्स हैं वहां से मिलता है, या फिर हमारे खुद के अनुभव जो है, हमने जो अनुभव किया है। अब वो अनुभव भी हो सकता है माइंड दे रहा हो, वहां पे भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये अनुभव मेरा माइंड मुझे बता रहा है या ये अनुभव एक्चुअली मैंने सही में किया है। तो इस तरह से मेरा माइंड को, मैं अपने माइंड को किस तरह से फंक्शन कर रहा हूँ वो हमें भगवदगीता सिखाता है कैसे समझे। अच्छा, 6वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, वो कहते हैं कि कृष्ण, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा की दिशा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता। अब हमारे लिए हवा की दिशा को कंट्रोल करना कितना कठिन है, हम तो सोच भी नहीं सकते। पर अर्जुन जैसा एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति है, एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति है, जैसा सोच रहा है कि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो माइंड को कंट्रोल अगर नहीं कर सकते, तो हम लोग इस एज में, आज के डेट में, वो तो द्वापर युग था, तब उस समय पे लोगों की चेतना, उस समय पे उनके थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही लेवल के होते होंगे, हम नहीं जानते। अब कलयुग है, लोग वैसे भी बात करते हैं कलयुग तो बहुत खराब युग है, खराब एज है। तो इस एज में हमारे आसपास जिस तरह सोशल मीडिया का प्रभाव है, इंटरनेट का प्रभाव है, इतने गलत चीजों के बीच में हम माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो बड़ा कठिन है। तो देन गीता टॉक्स अबाउट दैट हाउ टू कंट्रोल द माइंड। तो कृष्ण उसके बाद कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा मन बहुत कठिन है कंट्रोल करना, लेकिन बाय प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल। अभ्यास करेंगे ना आप तो संभव है। कैसा अभ्यास करना है? बार बार मन को जहां भी गलत जगह जाता है उसको आप खींच के लाओ। उसमें उदाहरण भी देते हैं कि कभी अगर नाव गलत दिशा में जाती है तो नाविक क्या करता है, उसको वापस खींच के सही डायरेक्शन में लाता है। वैसे ही हमको अपने मन को करना है, जैसे हम गलत डायरेक्शन में जाएं तुरंत खींच कर लाएं और वापस अपने काम में लगे। इस तरह से धीरे 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 जब माइंड को एक ट्रेनिंग देते जाए तो फिर वो ठीक होगा। तो दिस इज अबाउट माइंड मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डिवाइन एंड डेमोनियक प्रॉपर्टीज। चैप्टर 16 टॉक्स अबाउट, भगवत गीता में, कि अच्छे गुण क्या हैं और बुरे गुण क्या हैं। कई बार लोगों में ये डिस्कशन होता है कि ये तो आपके हिसाब से सही गलत है ना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर एक चोर कहे कि चोरी करना अच्छी बात है, तो फिर क्या करें? दुनिया में एक लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है ताकि सही क्या है गलत क्या बता बता सके। पर मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये सही है ये गलत है, मैं नहीं मानता, आपके हिसाब से होगा, फिर तो सब जगह chaos हो जाएगा, सिचुएशन खराब। बट इसी प्रकार से अगर हम लोग इस नेचर में, प्रकृति में अगर हम जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, तो देर इज समथिंग हायर लॉज विच आर देयर, जो कि सिर्फ इस कंट्री से नहीं है, जो कि सारे कंट्री के लोगों के लिए अप्लाई होता है। कुछ लॉज तो हम लोग साइंस में पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, ये जो भी साइंस से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी उसमें, तो ये सारे लॉज तो हैं जो नेचुरल लॉज हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लॉज हैं कि सही चीज क्या है गलत चीज क्या है, वो यहाँ पे गीता डिफाइन कर रही है। और गीता नहीं डिफाइन करिए, कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं गीता बोलते हुए। तो उसमें अच्छे गुण क्या है वो भी बता रहे हैं और बुरे गुण क्या है वो बता रहे हैं। सो एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव हिज लाइफस्टाइल कैन गो थ्रू दैट, एंड उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है किस तरह से मैं अपने आप को डेवलप करूं, इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकूं और इन चीजों से बचूं। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे हम डाल आता है कि कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से कुछ चीजें सिखा रहे हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए और आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। तो हमने कई बार एक सुना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक हो, इस तरह से कहते हैं।
लेकिन यहाँ कृष्ण एक विशेष बात कर रहे हैं। मैं वो श्लोक से डायरेक्टली वहीं अभी पढ़ता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि अपने से जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, अब यहाँ पे परमेश्वर शब्द भी है, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, वरिष्ठ, इनकी पूजा करना, इनका सम्मान करना, पवित्रता, स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सभी शारीरिक तपस्या है। अगर कोई सोचे कि मैं ऑस्टेरिटी क्या करूं, तपस्या करना है। तपस्या आज की डेट में हमको वो जाकर बैठ के कहीं पे कुछ वर्षों तक तपस्या करना वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे लिए इतना ही है कि अगर हम अपने से जो वरिष्ठ हैं उनको सम्मान करें, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, जो कि आज लोगों में होती नहीं है। दे आर लैकिंग, स्टूडेंट्स आर लैकिंग, चिल्ड्रंस आर लैकिंग। तो ये सारी चीजें हो रही है, स्वच्छता नहीं है। अब हाँ, आपको तो शायद पता ही होगा कि हम कॉलेज में जब रहते थे हॉस्टल्स में किस प्रकार से लोग रहते थे। मैंने खुद देखा है कि ठंडी के समय में लोग नहाते ही नहीं थे। एक स्नान करना, नहाना भी लोगों के लिए इतना कठिन तपस्या हो सकता है कलयुग में, ये उस जमाने में भगवान ने पहले ही बोल दिया। इसीलिए लिखा है कि, इसलिए बोल रहे हैं कि पवित्रता, स्वच्छता, ये शरीर की तपस्या है। और फिर बताया गया है कि अहिंसा, अहिंसा शब्द का एक बड़ा अच्छा अर्थ है कि किसी को हर्ट नहीं करना अहिंसा कहलाता है। हर्ट आप मेंटली भी या वर्बली भी उसको नहीं करना, ये अहिंसा कहलाता है। हाँ, जहां पर जरूरत हो, जैसे किसी गलत चीज के लिए आप अगर उसको बचाने के लिए कहीं पे हिंसा करें, जैसे आत्मरक्षा के लिए, तो इस तरह से वो हिंसा तो अलाउड है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू लॉज भी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो भी। अच्छा, दूसरा है ये बात है कि वाणी की तरफ से हमारा जो स्पीच है वो कैसा होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, हितकर बोलना चाहिए, लोगों के भले के लिए होना चाहिए, और प्रिय शब्द बोलना चाहिए। तो ये मुंडक उपनिषद में भी आता है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुयात, अब्रुवात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और जो दूसरों के लिए लाभकारी चीज है ऐसा बात करना चाहिए, अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना वाणी की तपस्या। कृष्ण ये भी बता रहे हैं अर्जुन से कि आपको किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए। तो क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं? कलयुग में, आज के डेट में हम लोग जिस तरह से जीते हैं, हमारी बातचीत कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, एटिकेट भी सिखा रहे हैं भगवान गीता में। इसीलिए मैं कह रहा था कि गीता हमको जीने के बारे में सिखाता है, कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये कुल मिला के इस तरह से पॉइंट्स था। एक एक और पॉइंट है, हालांकि बहुत सारे कंटेंट्स हैं, मैं कुछ इसमें 2 पॉइंट और बताऊंगा। एक पॉइंट नहीं, दो नहीं, एक ही है। इसमें ये है कि कृष्ण बार बार ये पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं कि कोई भी काम आप करते हैं तो आप उसे ड्यूटी समझ के करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप उसके फल से डिटैच हो जाएंगे। तो अबाउट डिटैचमेंट, कर्म फल को त्यागना, जो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बार बार ये श्लोक लोग कहते हैं। उसका अर्थ वास्तव में क्या है? उसका अर्थ ये है कि कर्म फल को त्यागो, कर्म करना है, बट उससे आप अटैच मत रहो उसके रिजल्ट से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं जॉब करूं और जॉब से जो सैलरी मिलेगी उससे मैं अटैच ना रहूं? वो तो मुझे, तो ऑटोमेटिकली होगा, उसी से तो मोटिवेशन आता है कि भाई आपका प्रमोशन होगा, 5,000 मंथली बढ़ जाएगा, अब तो मोटिवेशन आएगा कि मुझे करना चाहिए। तो उससे कैसे बचें? सो कृष्ण सेज दैट आप उससे अटैच मत रहिए, वो आपके पास आएगा, ठीक है, बट आप उसको ये समझ के करो कि जैसे एक कैशियर होता है, बैंक में कैशियर होता है, वहां पे कई प्रकार के लोगों के पैसे आते हैं और उसका काम है नोट गिनना। वो जब नोट गिनता है तो ये नहीं सोचता कि ये मेरे पैसे, वो उसका ड्यूटी है नोट गिनना। इस प्रकार से वो कार्य करता है तो वो अटैच नहीं होता उतने जो लाखों रुपए वहां पे आते हैं। पर अगर वो ये सोचने लगे कि मैंने नोट गिना है, वो अटैच हो जाए, तो फिर क्या होगा? उसको परेशानी होगी। इसी प्रकार से हमें अपना लाइफस्टाइल जीना चाहिए कि वी शुड बी डिटैच फ्रॉम दैट थिंग रिजल्ट, ऑल्दो वो हमारे पास आ रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज अटैचमेंट, अटैचमेंट अगर होगा सो वॉट एवर मिजरी, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी हम कष्ट झेलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, जो कुछ भी आता है, एक्चुअली ये सभी अटैचमेंट के कारण आता है। अटैचमेंट किससे, किस चीज से अटैचमेंट है? अटैचमेंट टूवर्ड्स एंजॉयमेंट। हम जो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट करने की बात हमने शुरुआत में की थी, मैं वापस उस चीज को ला रहा हूँ कि हर कोई कार्य, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है,
हर काम के पीछे हमारा मोटिव होता है मुझे खुशी चाहिए, और वो नहीं मिलता तो हमें तकलीफ होता है। सो आप उससे क्यों पहले से रिजल्ट बना के रखें कि मुझे खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी। डू जस्ट फॉर योर ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, खुशी मिले या दुख मिले उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने अपना कार्य किया, कर्तव्य किया, बस वो मेरा कार्य होना चाहिए, बाकी तो जो रिजल्ट है वो मिलेगा, मिलेगा। So this was the last point which I was covering. वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं हम काफी देर इसमें चर्चा कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ टाइम मैं छोड़ देता हूँ। 6 से 7 का टाइम था, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न हो या जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो जो आप लोग पॉइंट आउट करना चाहें तो प्लीज आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद मिथिलेश जी। बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया। तो मेरे मन में भी एक सवाल है, और मैं जानता हूँ कि मेरे सवालों को आप ऑन स्पॉट आंसर कर सकते हैं, बट पहले हम लोग सवाल और जो भी ऑडियंस है उनका सवाल लेना चाहेंगे। So, किरण खंगन सर अपना हैंड रेज कर रहे थे, या कोई भी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते No, thanks. हैं। मिथिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वाणी के संयम के बारे में आपने कहा कि हमारी वाणी संयमित होनी चाहिए और हमें अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमें हार्ड शब्द का उपयोग, या अहिंसा की बात की कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें किसी को तकलीफ हो। हम्म। लेकिन मैं अभी अपने रिसेंट 5 इयर्स के एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इफ आई एम नॉट स्ट्रिक्ट, वर्क नहीं हो पाता। इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जैसे स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, कठोरता तो होनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि कभी कभी जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, कुछ ज्यादा वृद्ध हैं, वो कई बार कुछ बातें करते हैं, उनकी बातें बुरी नहीं लगती, हालांकि वो कड़वी बोलते हैं, पर वो हमें बुरी नहीं लगती। बुरी इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो हमारे भले के लिए कहते हैं। तो हमें ऐसे शब्दों का, कड़े वचनों का उपयोग वहां करना चाहिए जहां हम ये समझते हैं कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। पहला तो मेरा अधिकार क्षेत्र है जहां मैं बोल सकता हूँ। दूसरा, हम जिससे कह रहे हैं क्या उससे मेरा इतना संबंध है कि वो मुझे समझ सकता है। अगर हमने कठोर वचन का उपयोग किया और उस कठोरता का वो सम्मान ही ना करे, तो फिर ऐसे कठोर वचन का तो कोई फायदा नहीं, उल्टा हमारा ही अपमान। हमने किसी के लिए स्ट्रिक्टनेस में बात किया और उसमें हल्के में ले लिया, तो ऐसे व्यक्ति को कठोर वचन से नहीं बल्कि उसको दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, दूसरे तरीके से बात करें। यहाँ पर अर्जुन को भी भगवान कृष्ण डांटते हैं। जब कृष्ण बोलना चालू करते हैं तो सबसे पहला जो वाक्य है वो डांटने का ही वाक्य है। उसमें अर्जुन बार बार कहते रहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि जो मृत है या जो जीवित है उसके लिए शोक करना एक एक पंडित के लिए शोभा नहीं देता, एक विद्वान व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। तो कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली मूर्ख कह रहे हैं। ये पहला वाक्य है जो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। तो अर्जुन को इस प्रकार से बात करें कि तुम कैसे एकदम मूर्ख जैसा, थर्ड क्लास ऐसे बात कर रहे हो कि तुमको ये, मैं कैसे लड़ू, क्या करूं। बिकॉज उन्होंने ऐसे वचन का यूज किया क्योंकि वो अप्रिशिएट कर रहा है, बिकॉज ही, वो खुद सामने से आया, बोला कि मुझे आप गाइड कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। तो देन वहां पे हम लोग स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे गाइडेंस लेना ही नहीं चाहता, उसके पास हम कठोर वचन बोल के कोई फायदा नहीं। हमें वहां पे प्यार से समझाना चाहिए, बोल देना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हम वर्क ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, वहां पे जो हमारे अंडर सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ हम कैसा डील करें, तो उनको भी कुछ स्ट्रिक्टनेस के साथ हम बात कर सकते हैं। पर कठोर वचन जैसे बात किया जा रहा है कि उनको तकलीफ ना हो, हमने क्योंकि उनको उनके कार्य रिमाइंड करा है, इस तरह से हम बात करें, लेकिन उनको तकलीफ ना हो। जैसे आजकल जिस तरह से लोग बात करते हैं वो बहुत भद्दी बातें होती है, बहुत खराब लैंग्वेज होता है, इस तरह से बातें होती है। तो इस तरह का वचन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो सत्यम होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। इसमें वो जो प्रिय है, वो प्रिय शब्द का अर्थ ये है कि हम उसको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा वो बोल रहे हैं। हो सकता है उसको थोड़ा-सा खराब लगे, लेकिन अभी खराब लगे, पर उसे फिर थोड़ा बाद में समझाना चाहिए कि देखो ये मैंने आपके भले के लिए कहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कठोर वचन यूज़ किया है, कुछ काम के लिए, कुछ बताने के लिए, तो वो होने के बाद या वो इंस्ट्रक्शन लेने के बाद थोड़े समय बाद उसको वापस उससे बात करके हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप नहीं कर रहे बार-बार, मैंने कई बार समझाया, इसलिए मैंने ऐसा आपको कहा। आई आई होप दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हम कुछ उसमें बात कर सकते Thank you. Sir, Vijendra Singh sir. Sir, please unmute and go ahead. हैं। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। विजयेंद्र सर। हेलो, जी सर। मेरी आवाज जा रही है? जी, आ रही है। Audible है sir, please. हाँ, मैं विजेंद्र सिंह हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर, ये जिस समय गीता या रामायण या कुछ भी चीजें लिखी गई थी, वो उस समय एक पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी के अंदर इनकी मान्यताएं थी। अब आज के डेट में जब पूरा दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुका है, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अब प्रेजेंट है। मतलब हम हिंदूज हैं, हम गीता, कृष्ण, राम, शिव सबके ऊपर बिलीव करते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं हमारे बैक माइंड में कुछ भी हमारा जो भी हमारा मतलब अप्रोच होता है लाइफ का, तो गलत से गलत आदमी के भी दिमाग में ये चीज हमेशा रहता है कि भाई भगवान है, हमारे यहाँ ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये सही है। हम एक पर्टिकुलर एक जो स्कूल ऑफ थॉट में हम पले बड़े हैं, हम उस पॉइंट से कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है। बट हमारे सिवाय इनफैक्ट अब वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऐसा है जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स को नहीं फॉलो करता। अगर उनसे मुझे डील करना हो, जो मेरी किसी भी चीज को ना समझने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार हैं, ना उन्होंने कभी ऐसी कुछ चीज सुनी है, क्योंकि बहुत बड़े आप हम लोग के यहाँ पीस बड़ा बेसिक सा वो रहा है कि हमारा धर्म पूरा का बेस पीस है। बट हर स्कूल थॉट्स ऐसा नहीं है। उनको तो ये कई कई में तो मैंने सुना है, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है कि कुछ में तो ये होता है कि इफ यू डोंट फॉलो देम यू आर अ ट्रेटर और यू आर अ काफिर। तो आपको जिंदा रहने या एग्जिस्ट करने या बराबर का या हक का भी अधिकार है। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ है तो हमारी ये थॉट प्रोसेसेस हम उनके साथ कैसे अप्लाई करें? तो ग्लोबलाइजेशन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन उस समय भी हुआ करता था। उस समय में भी अलग-अलग प्रकार के लोग थे। हालाँकि अलग-अलग कंट्रीज़ नहीं थे, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं थे। लेकिन उस समय पे भी जो अ, जैसा हम पढ़ते हैं, जो स्टोरीज़ में आता है कि कुछ ऐसे होते थे जो डीमन्स होते थे, जो कि दैत्य कहलाते थे, कुछ दैवीय प्रकृति के लोग होते थे। तो देवता और दैत्य ये आपस में किस तरह से इनका सामंजस्य बिठता था, या मनुष्य कैसे इनके साथ सामंजस्य बिठा सकता है। तो देखिए, अब स्कूल ऑफ थॉट्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा कितना उनके साथ जिस तरह से जो भी बिहेवियरल हमारा जो भी डिस्कशन होने हैं, या जो भी हमारा काम-काज का जो दायरा है, वो हमारे दायरे के अनुसार हम लोग जो अलग-अलग देश के नियम हैं, जिस तरह से नियम हैं, उन नियमों को तो हम पालन करते हैं, वो चीज़ करना है। हाँ, अगर वो कुछ गलत सोचते हैं, तो हमारे साथ, जैसा कि आपने कहा कि उनके साथ हम कैसा बिहेव करें, कैसा डिस्कस, मतलब हमारा कैसा होना चाहिए ओपिनियन। तो हमें दूसरों के ओपिनियन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन के सामने जो दुर्योधन था, दुर्योधन का भी स्कूल ऑफ थॉट पूरा अलग था। अर्जुन का स्कूल ऑफ थॉट अलग है, दुर्योधन का अलग है। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा,
लेकिन क्या इस बात को दुर्योधन अप्रिशिएट करता? नहीं करता। अरे वो तो यही कहता है कि डर गया, डर गया। हालांकि ये क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि इसके पास रीजंस हैं कि मैं गलत काम नहीं करना चाहता, मैं पीस में रहना चाहता हूँ, वॉर नहीं चाहते। ऐसे ही हम लोग भी आज सनातन धर्म में जिस तरह से लोग पीस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बट मैं भी और भगवत गीता भी और हमारे स्क्रिप्चर्स भी बार बार ये पॉइंट में करते हैं कि अहिंसा कोई एक तरफा नहीं होता। जो नॉन वायलेंस की चीज है वो जहाँ पे नॉन वायलेंस अप्लाई करना है तब, जहाँ पर गलत चीज होता है वहां पे वायलेंस तो जरूरी है। वायलेंस जितना जहां जहां पे जरूरी है उस जगह पे वायलेंस रिक्वायर्ड है। जैसे एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी बहुत जो हिंसा है उस तरह की कैसे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी सर ने ही बताया कि अभी उनके सबॉर्डिनेट्स अगर कुछ गलत चीज करते हैं उनको स्ट्रिक्टली उनको बोलना पड़ता है। स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, सबको प्यार से ही बोलते रहेंगे तो कई बार आपके काम ही नहीं होंगे। तो जब हम वहां पे इस तरह का यूज कर रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से सटल वायलेंस है। बट वो अंडरस्टूड है, वो रिक्वायरमेंट है वहां पे। इस तरह के रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं, इस तरह के वायलेंस। लेकिन हाँ, हम वायलेंस मतलब ये नहीं कि किसी को भी बस उनका जो फिलोसफी आपने जो बताया अभी कि काफिर है या ये, उस तरह का काम हम नहीं कर रहे। पर अगर रिक्वायरमेंट है तो युद्ध लड़ने की बारी आएगी जब, तो उस समय पे बिल्कुल युद्ध करना पड़ेगा। अगर कोई गलत चीज के खिलाफ लड़ना है तो गलत चीज के लिए हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन के सामने युद्ध था, हमारे सामने भी युद्ध है, लेकिन वो युद्ध भीतर है। हम भीतर अपने बुराइयों से लड़ रहे हैं, लड़ना तो वहां भी पड़ेगा। आप वो नॉन वायलेंस में नहीं बैठ सकते। तो ये जो गलत चीजें हैं, गलत थॉट्स हैं, इनके खिलाफ हमको लड़ना ही पड़ेगा। और ये शांति की जो बात है वो वहां पे ही है जहाँ पे शांत लोग हैं या अच्छे लोग हैं, हम उनके साथ कैसे डील करें। देयर आर टू टाइप ऑफ डीलिंग कि अच्छे लोग उनके साथ कैसा डील करें, अब जो बुरे लोग हैं या जो लोग इसको स्वीकार नहीं करें उनके साथ कैसा डील करें। तो गीता वो दोनों के बारे में बात कर रही है, उसमें दोनों चीजें आ रही है, इसलिए वाणी का बारे में आ रहा है। खैर, एक और पॉइंट ये भी है कि इतना ज्यादा खराब समय अब धीरे धीरे आ रहा है, बढ़ते जाएगा, कि अब हम ये भगवत गीता को लेकर आप चलेंगे तो हो सकता है बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछूंगा कि अगर 100 में से 99 लोग एक साइड होते हैं बिकॉज वो आज के हमारा ट्रेंड वैसा चल रहा है, बट आप फिर भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप 99 में से वो अलग एक होंगे या उनके साथ मिक्स होना चाहेंगे? तो ये हमारा प्रिंसिपल हमें कितना अलाउ कर रहा है, हमारे अपने सिद्धांत कि आज जमाना अभी तो चल रहा है। अभी हम तो थोड़ा बहुत ट्रेन में जाते हैं, चलो सीट नहीं मिला, टीटी को थोड़े पैसे दे देते हैं, चल जाएगा। सब तो करते हैं, हम भी कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसे चल रही है, चलता है सब। ऐसे कई सारी चीजें एडजस्ट कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। पर जब बहुत क्रूड एग्जाम्पल जहाँ पे आएगा, क्या वहां पे फिर हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हो पाएंगे? तो ये हमारा प्रिंसिपल, हमारा मोटिव हम खुद डिसाइड करेंगे। और उसके लिए डेफिनेटली हम ऐसी प्रिंसिपल है, गीता के प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हमको सर एक दूसरों शॉर्ट के इसी साथ इस से तरह। पॉलिटिकल है क्वेश्चन थोड़ा, जी। बट अभी जैसे मणिपुर का केस चल रहा है, मैतेईज हैं, ये सब कृष्ण भक्त है ना, गीता को फॉलो के हाँ फॉलोअर्स है, एंड हाँ कुकीज का आप जानते हो। तो अभी जी। जो है ये टसल दो क्रिश्चियंस और गीता फॉलोअर्स के बीच का है। अब इसमें क्या मैतेई या जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं एज पर गीता? मैं इसीलिए मैंने ये बताया कि द्वापर युग के समय में क्षत्रिय युद्ध करते थे, जबकि आज के समय में हमारे पास सिस्टम है, लॉज वगैरह है, हम इसके सहारे हम लोग फाइट करते हैं। अच्छा, तो क्या करें अगर हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया जाए तो हम इसके लिए क्या करें? तो आत्मरक्षा के लिए हम अपने शस्त्र उठा सकते हैं। परंतु यहाँ पे अगर आप देखें भी तो मैतेई और कुकीज के बारे में, तो संख्या बल अगर देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो बहुत कम संख्या है भक्तों की और वो बहुत ज्यादा संख्या में है उनकी पॉपुलेशन। तो अगर वो उनसे लड़ने भी जाएं तो क्या मिलेगा? तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर हम शस्त्र उठाएं वो बेटर है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमने आखिरी समय तक फाइट किया और कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। तो हम बिल्कुल से यहाँ पे
गीता के जो सिद्धांत हैं, गीता के सिद्धांत में ये नहीं आता कि अभी हमको युद्ध करना चाहिए। आज के समय में हमारे लिए सिचुएशन ऐसी बनी है कि जो राजा है, मतलब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी है। हम उनको देखते हैं अगर वो हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो फिलहाल के लिए तो ऐसी स्थिति में अब कलयुग का तो सामना है, तो इस तरह से हमको करना पड़ेगा। और जो सिचुएशन है बहुत खराब है, हम उसमें भक्तों के लिए यही है कि वो भगवान पे आश्रित रहते हैं। तो देखिए क्या होगा। मैं इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं बता सकता है कि किस तरह से चीजें आगे होंगी, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों बनी? इसी सब चीजों के लिए बनी। एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म करेगा, तो ये तो बहुत गलत चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं, लोग नहीं है ज्यादा। अगर आज यही 50-50 होता तो हो सकता है ये भी लड़ते, पर शायद उनके पास वो शायद नहीं, उनके पास तो उतना संख्या नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊंगा कि धन्यवाद क्या करें। मिथिलेश जी, आपका आंसर क्लियर आंसर था। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा बारीक क्वेश्चन था विजेंद्र सिंह सर का। ये को एग्जिस्टेंस पे बात है, और को एग्जिस्टेंस विद पीपल विद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और दिस इज द मेन रीजन ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन हाउस एंड आउटसाइड हाउस, मीन्स इन द इंटायर वर्ल्ड। और उसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मतलब कब तक आप शांति मोड में जाएंगे और कब आप हिंसा मोड में जाएंगे, और गीता हमें इस पे क्या गाइड करती है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं संजय सर का लेना चाहता हूँ। संजय सर अनम्यूट करेंगे? प्रीति मैडम, प्रीति गोल्डर मैडम, यस सर। आप कुछ बोल। जी सर। हेलो। हाँ, मैं संजय शर्मा। मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया और बहुत सारे प्रवचन भी सुने हैं कई कई जगह से, कई कई समय के अंतराल में। सबने कहा कि मन को कंट्रोल करो। जब मन भागता है तो उसको खींच खींच के एक जगह लेके आओ। अब एक जगह कैसे लेके आए भाई? हम तो ला रहे हैं उसको साथ में, फिर भी वो मन भाग रहा है, फिर भी भाग रहा है। सुबह को सुबह ही 5 बजे उठ जाते हैं, फिर नहाते धोते और चले भी जाते हैं, कहीं दूसरी जगह भी शांति के लिए बैठ जाते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि कोई और मंत्र है क्या, कोई और ट्रायल किया जाए, किसी आपका कुछ अनुभव हो या आपका कहीं लिखित रूप में हो कि मन को खींच के कैसे लाया जाए कि वो कंसंट्रेशन बने और उस कंसंट्रेशन में हम वो काम करें, वो अनुभव करें जो सब लोग आज तक कहते आए हैं। मुझे मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो कम से कम बहुत सालों से यही देख रहा हूँ। मेरी उम्र भी अब ऐसी ये कम नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में कुछ और 2-4 पॉइंट बताएं कि मन को खींच के एक जगह लाके कंसंट्रेट करना है। सब बताते हैं यहाँ नाक के ऊपर करिए, यहाँ करिए, माथे में करिए, माथे में एक वो जलेगी, कोई लौ सी जलेगी, उसको देखिए। कोई और आसान सी चीज़ ऐसी बताइए जहाँ लौट जल जाए और हम उससे जो है बहुत प्रभावित हो गए, हमारा रोज हम उसको कंसंट्रेशन करें और हम अपने लिए तो जो करें सो करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हम ये सब कुछ कुछ करने के लिए इच्छा है, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने जो पूछा कि मन को कैसे खींचे, तो मैंने पहले ही तो बताया था कि मन को बुद्धि के माध्यम से खींचना चाहिए। अच्छा, अब ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, जिसमें मैं थोड़ा सा और गीता के कुछ बातें कर सकता हूँ कि मन वास्तव में 5 इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है, हालांकि गीता कभी नहीं कहती, गीता में बात जरूर कही गई है कंट्रोल की, लेकिन प्रैक्टिकली कंट्रोल हम नहीं कर रहे। हम मन को डायरेक्शन उसका बदल रहे हैं। माइंड का जो डायरेक्शन है, जो गलत तरफ है, उसको हम राइट डायरेक्शन में ला रहे हैं। उसी को हम कंट्रोल करना आप कह सकते हैं। कंट्रोल करने का एक तरह से ये अर्थ हम लगा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक पानी का ग्लास है, जो कि बहुत या तो वो पानी गंदा है, या तो वो पानी का जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्लूइश कलर है या ब्लैकिश कलर, जो भी।
तो नॉर्मल वाटर नहीं है। आपको अगर उसको प्योर करना है या अच्छा पानी उसमें वापस करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि गिलास को उल्टा करें, खाली करें और अच्छे पानी भर दें। आपके पास वो ऑप्शन नहीं। वो पानी रहेगा और आपको अब उसको प्योर करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, या तो आप उसमें क्लोरीन अ, वो डाल दीजिए, तो फिर वो अपने आप सेटल हो जाएगा और ऊपर क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, हालाँकि ये क्लोरीन वाला काम हम अपने माइंड में क्या कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव थॉट्स डालना है। दूसरा जो तरीका है, वो भी इसी प्रकार से कि आप उसमें प्योर वाटर डालते जाइए। पानी, अच्छा पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। अगर वो ब्लूइश कलर का है, तो अपने आप वो कलर डाइल्यूट होते वो फिर बहुत समय में वो अपने आप प्योर हो जाएगा। इसी तरह से अगर गंदा पानी है, आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, पानी को फ़ोर्स से डालते जाइए उसमें। तो कुछ समय के बाद वो जितने पानी जो अंदर जो गंदा पानी है, वो बाहर निकल आएगा। अब उसमें साफ पानी रहेगा। तो हमारे मन को हम वास्तव में कंट्रोल करने का ये जो सिस्टम है, ये ऐसा नहीं कि आप किसी पॉइंट पे ध्यान कर लो। ये बहुत इस तरह से हमारे लिए संभव नहीं है। ये पहले के युग में लोग करते थे क्योंकि उस समय पे एनवायरनमेंट वैसा था। आज के डेट में इतना दौड़-भाग सब जगह चल रहा है, रश, हम ये नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो माइंड जो गलत जगह पे जाता है, मन भागता कहाँ है? मन भाग के जाता कहाँ है? गलत जगह पे। कभी भी गलत मैं कल ही इस पे मैंने चर्चा किया कुछ स्टूडेंट्स के साथ। मैंने उनको बताया कि हमारा माइंड अच्छी चीज़ों को स्टोर क्यों नहीं करता और गलत चीज़ों को स्टोर कर लेता है। मैं अगर बचपन में मैंने कुछ गलत चीज़ें सुनी हो, वो मुझे जल्दी याद आएगी, बजाए कि मैंने बचपन में कोई भजन सुना हो, तो वो याद नहीं होता। मैंने उनसे पूछा भी, आपको एक बॉलीवुड का सॉन्ग सुनाएँ और आपको भजन सुनाएँ, कौन ज़्यादा याद रहेगा? तो तुरंत उनका आंसर था, हाँ, बॉलीवुड का सॉन्ग याद रहेगा। डिपेंड करता है कि किसकी टेंडेंसी कैसी है, किसका माइंड किस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो हमारा माइंड मक्खी के समान है, जो गंदगी में जाता है, या हमारा माइंड मधुमक्खी के समान है, जो फूलों की तरफ जाता है। उसको शहद चाहिए कि कचरा चाहिए, ये हमारा अपना-अपना माइंड है और हम उस माइंड को पर्टिकुलरली ट्रेन कर रहे हैं, उसको इनपुट्स वैसा देके। तो हमारे जो पाँचों सेंसेस हैं, इसके माध्यम से आप जितना पॉजिटिव इनपुट आप माइंड को दे सकें, उतना पॉजिटिव देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। वो अपने आप जो नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल जाएगी और फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपका माइंड जिस तरह से आप ले जाना चाहेंगे वैसा जाएगा। पर ऐसा नहीं कि ये 2 दिन का काम है, ये 2 साल का काम है, ये 20 साल का नहीं, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग टाइम सेट होगा। कौन कितना जल्दी कर सकता है वो उसके डिज़ायर पे है। जो जितना ज़्यादा डिज़ायर उस पे रखता है कि मैं अपने मुझे करना ही है, अपने माइंड को इस तरह से, कभी कोई गलत चीज़ों में नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देना है। तो वो अपने आँखों से पॉजिटिव चीज़ ले, कान से पॉजिटिव चीज़ ले, जीभ से पॉजिटिव ले, तब तो इनपुट, मैंने इसीलिए कहा इनपुट अच्छा आएगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो माइंड को इसी तरह से हम कंट्रोल करने का ये सिद्धांत है। ऐसे ही आप खींच सकते हैं, नहीं तो आप कैसे खींचेंगे? आपके पास शक्ति होना चाहिए ना खींचने के लिए। तो मन को खींचने के लिए हमारे पास शक्ति कहाँ से आएगी? वो इनपुट्स जितने आएँगे, तब आप पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं अपने आप को, उसके माध्यम से आप खींचेंगे। अदरवाइज़ ऐसे नहीं खींच सकते कि मैंने सोचा चलो मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, तो मैं सुबह 4 बजे अलार्म बज रहा है, मैंने स्नूज़ किया, मैं सो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे उस समय पे मेरी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है कि नहीं अभी उठो, उठो समय हो गया है, छोड़ो ये सब। बट मेरा माइंड उसमें बोल रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, सोने दो। अब जब आप स्ट्रेंथ लेके आएँगे अपने भीतर डिसीज़न मेकिंग का, तो आप माइंड को बोल सकते हैं तू शांत बैठ, मुझे 4 बजे उठना है इसीलिए अलार्म लगा। तो तब आप उठ सकते हैं। अपने जो विल पावर है, विल पावर क्या होता है? विल पावर को मजबूत कैसे करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स से, स्ट्रेंथ से, वो बिल्डअप करना है। तब आप माइंड को वास्तव में कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल वर्ड बहुत लास्ट की बात है, फिलहाल हम कह रहे हैं कि माइंड को थोड़ा प्योर करने की बात होती है, उसको साफ करने की। तो दैट इज़ व्हाट माय आंसर इज़, ये मेरा उत्तर है इसके। थैंक Next question by Preeti Madam. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि हमें निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कर्म का जो परिणाम है वो निराश कर देने वाला होता है। तो उस परिस्थिति का हमें किस प्रकार सामना करना चाहिए?
हाँ, तो मैंने यही कहा कि आशा और निराशा हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है, या एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में एक कोट आता है, उसमें कहा जाता है कि आशा ही परमम दुखम, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ मिजरी। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो फुलफिल हो या ना हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं से वो मिजरी लेके आता है। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत कठिन है। एक्सपेक्ट कैसे नहीं करें? ओके, ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे, बट हम धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से सिखाएं कि हम जो हम कार्य कर रहे हैं वो मैं किसी पर्पस के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बोले क्या? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा डील करता हूँ। एक देखते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि अच्छे मार्क्स आए। तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इसके बजाय आप ये सोचे कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट आई गेन नॉलेज, जो कि स्कूलों में ऐसे सिखाया जाता है। अ, प्रभु जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। माय वॉइस अभी आ रहा है? हाँ, Yes, ऑडिबल। ma'am. I'm here only. बीच में नहीं आ रहा था आवाज। यह 30 सेकंड्स का मिस हुआ है मिथिलेश जी, 30 सेकंड्स बस। ओके ओके। मैं ये कह रहा था कि आशा और निराशा, जो एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, सो हमको इस प्रकार से सोचना चाहिए कि कैसे हम बिना एक्सपेक्टेशन के काम करें। जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, उसका मोटिव होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको परेशानी होती है। ओके, तो वो क्या, उसे क्या करना चाहिए कि हमें जैसे बताते हैं कि हम जैसे सीखते हैं, बच्चों को स्कूलों में बताया जाता है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो, आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उसके लिए पढ़ो। तो अगर आप उसमें निराश भी होते हैं, तो आपको ये तो पॉजिटिविटी है कि आपने नॉलेज तो लिया ना। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, उस काम में हमें निराशा मिलती है, ठीक है, ये तो सिद्धांत है कि कोई एक व्यक्ति सफल होगा, बाकी दूसरा असफल होगा, ये होगा ही। लेकिन हमने उस प्रोसेस में कुछ तो चीज ग्रहण किया, कुछ तो स्वीकार किया, कुछ तो पाया। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत लोग फेल होते हैं, बट क्या वो एक्चुअली फेल हुए? अगर वो ये पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं कि मैंने एक्चुअली इतना कुछ सीखा है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करेगा। थॉमस अल्वा एडिसन तो बोलते हैं कि मैं बल्ब बनाते समय मैं 10,000 बार फेल हुआ। तो एक्चुअली 10,000 बार वो फेल नहीं हुए, वो कहते हैं कि मैं 10,000 बार ये सीखा कि मैं कैसे बल्ब नहीं बना सकता। 10,000 ways of how to not make the light बल्ब। तो इस तरह की चीजें वो कहते हैं। सो पॉजिटिव थॉट्स जो है वो एक सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है, एक्चुअली अप्लाई भी करना है। सोचना भी इस तरह से कि मैंने एक्चुअली गेन किया, मुझे मिला चीज, कोई बात नहीं, अब मैं अप्लाई करूंगा आगे। तो निराश होने से क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, अगर आप निराश हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा लाइफ? कुछ मिलता है? कुछ नहीं। हताश हो गए, निराश हो गए, फ्रस्ट्रेशन से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो अगर मेरा रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, ओके, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग ना आए, मैं थोड़ी कंट्रोलर हूँ हर चीज का। मैंने सिचुएशन को थोड़ी कंट्रोल किया, मैं अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी क्या चल रहा है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम दूसरी चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। जी। तो Preeti ji, you go to your answer or you want clarification? Any other supplementary questions? Yes, I got it, sir. We'll go to the next question by Harsha Verma. sir, are we having sufficient time? Yeah, it will be the last question, I guess. If there is no other question, it should be the last question. नमस्ते सर। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको भाती हैं और हम करते नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे सूर्य नमस्कार है, वो हम सब जानते हैं कि हमको करना चाहिए डेली। हम सोचते नहीं है कि करना है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है। ऐसे मतलब बहुत सारी लिस्ट है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको भाता है, लेकिन समझता है कि करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। तो इसका कुछ
आपके प्रश्न में मैं एक और प्रश्न ऐड कर देता हूँ कि बहुत जी। सारी चीजें हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत। करते हैं। तो ये यस। क्यों करते हैं, है ना? तो इसका उत्तर भगवत गीता के 3 अध्याय के हाँ, 33वें हाँ। श्लोक में दिया हुआ है। अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ, जी। 3:37। आप लोग अगर पढ़ना है डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इंग्लिश में कहें तो द रीजन बिहाइंड दिस इज द मोड ऑफ पैशन। जो हमें पैशनेट जो भावना होती है, वो लस्ट को क्रिएट करता है, और जब लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता तो एंगर बनता है, और उस कारण से हमारे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दोनों चीज जो हम जानते हैं सही है, फिर भी हम करते नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम पैशन में इतने रहते हैं कि वो आउट ऑफ लस्ट हम दूसरी चीजों में हमारा माइंड रहता है। ये जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, खाली पेट हम मतलब कुछ एक्सरसाइज करने चाहिए, सुबह सुबह 7-8 बजे हल्के नाश्ते में सलाद लेना चाहिए, ये कुछ अच्छी चीजें हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो पर इन चीजों में हमारा माइंड इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि माइंड को चाहिए कि हमको थोड़ा ज्यादा सोना है, और एक्सरसाइज करें रोज, और खाने पीने में चटपटी चीजें खाएं, एंजॉय करें। इस ये सब चीजें माइंड को अच्छी लगती है। पर हम जानते हैं कि कुछ चीजें सही है। वो जो आप जानते हैं जो सही है और जो गलत है, वो वास्तव में बुद्धि का काम, इंटेलिजेंस का काम। लेकिन माइंड क्या करता है, माइंड उसको ओवर पावर कर देता है, और वो कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से करो, इसमें ज्यादा आनंद है, इसमें ज्यादा मजा आता है। तो इसीलिए आपको वो अच्छी चीजें करने नहीं देता, और बुरी चीजों में या गलत चीजों में हम सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो हम इसीलिए जानते हुए भी सही कार्य नहीं कर पाते, और गलत है फिर भी जान के कर लेते हैं। तो हमारा माइंड स्ट्रांग, हमारा माइंड इसमें धोखा देता है। इसलिए मन के बारे में जो हमने चर्चा किया, कैसे माइंड को हम कंट्रोल करें, उस तरह से हमें करना चाहिए, ताकि हम इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग कर सके और लड़ सके। तो भीतर हमारे जो लड़ाई चल रही है माइंड के साथ, उसको शांत कर सके। सर उसके लिए आपका कुछ, प्रश्न? हाँ आई गॉट। जी। उसके लिए कुछ जो शांत रहना या जैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट या सब उसके वो लिए। मैंने अभी जस्ट बताया था हाँ, कि मन हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा काम करता है। तो इन पांचों इंद्रियों से हमें समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हम कैसी चीजें ग्रहण कर रहे हैं, हम कैसे विचार ग्रहण कर रहे हैं, हम कैसी चीजें सुनते हैं, क्या चीज देखते हैं, हमारे आसपास संग कैसा है, कैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं। जैसे लोग होते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तो जितना आप पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भर सके, उतना अच्छा ये होगा कि आपका जो माइंड है अपने आप धीरे धीरे प्योरीफाई होता है। उसको समझ में आता है कि मुझे अपने हिसाब से कार्य नहीं करना है, मुझे पूछना चाहिए। वो इंटेलिजेंस से पूछेगा, और इंटेलिजेंस के पास ये सारा नॉलेज है। आपके पास सब नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मतलब इन सब चीजों के सही गलत के बारे में जितना हम सुने हैं वो नॉलेज रहता है, लेकिन काम पड़ने पर वो हम करते नहीं, क्योंकि ये हमारे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं, एबिलिटी नहीं है कि हम उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो हम इस प्रकार से माइंड को बस। कंट्रोल करें धीरे धीरे। क्योंकि हम वैसे ही कर लेते हैं, भले हम सुनते आए हैं बचपन से कछुए और खरगोश की कहानी, लेकिन अल्टीमेटली हम खरगोश ही बन जाते हैं। हम कभी कछुए की चाल में चल के आगे नहीं होते। मतलब ये सोचते कि अगर इसीलिए एक्सरसाइज करना है तो इसीलिए 2 मैंने महीने में हमको एग्जाम्पल उसका दिया रिजल्ट। था। जी। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था, सुबह 4 बजे या 5 बजे 6 बजे का भी लोग अलार्म लगाते हैं, बट स्नूज करके सो जाते हैं। जी, जी। जब अलार्म लगाए तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उठना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो सही है। बट सुबह जब मैं स्नूज कर रहा हूँ, तब क्यों? क्योंकि मैं कार्य नहीं कर पा रहा हाँ। हूँ। थैंक यू सर। I guess that there is no other question, so we'll conclude it. There are two, three major takeaways from today's discussion. Personally for me, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ मिथिलेश जी। पहली चीज़ है कि मुझे कहीं ना कहीं सेंस था कि ये सिर्फ गीता भर नहीं है, ये गीता अमृत है। तो अमृत क्या है? उसको पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, टाइम लेस हो जाएंगे, यू विल गो बियॉन्ड द टाइम। आज के डिस्कशन से पहले मुझे इतना सेंस था ये गीता नहीं है, गीता अमृत है। तो उसमें क्या अमृत है, कुछ एस्पेक्ट मिल गया है आपके डिस्कशन से मुझे बहुत क्लियरली। पहली चीज है कि इफ इफ यू गो बाय योर ड्यूटी, यू विल बी द टाइमलेस। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज मालवीय जी का एग्जांपल जो है, वो हमारे लिए टाइमलेस है। वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक
लोग मालवीय जी को याद करेंगे। अगर आप सेल्फ फ्रॉम बीइंग सेल्फिश, it is transition from being selfish to the selfless. Another example of Mahatma Gandhi also we can take, being selfish to being selfless. Or what distinguishes between being selfish and selfless is that अगर आप अपने enjoyment के लिए काम कर रहे हैं, so you are in the selfish mode. But if you are doing it for the sake of your duty, you are working towards the selfless mode. So it is the major takeaway for me from the today's discussion. So I am deeply I express deep sense of gratitude मिथिलेश जी for sharing your words of wisdom. And मुझे गीतामृत सीरीज के अगर इसको मैं पहला लेक्चर मानूं तो मुझे कुछ चीज़ें तो मिली हैं, मतलब कि it was really worth a discussion. It has added value to me. Second point, let me say that my family members have also joined your discourse. And third is that संजय सर हैं भिलाई स्टील प्लांट में इन्वायरमेंट में जनरल मैनेजर हैं, और उनके पिताजी इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने सवाल पूछे, और मैं उम्मीद कर रहा था कि हम लोग 100+ को एक्सेप्ट करेंगे और हम लोगों को रिग्रेट करना पड़ेगा कि हम लोग उनको ले नहीं सकते, बट नंबर वाज लेस, ऑडियंस का नंबर हमारा आज कम था. एनीवे इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, इट विल गो टू द यूट्यूब एक्चुअली, एंड लोग अपने भी जब भी टाइम होगा तब उसको देख पाएंगे. बट जो ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स है और जो क्वेश्चनिंग है उससे पता चल रहा है कि इट वाज रियली इंगेजिंग सेशन फ्रॉम द स्पीकर साइड एंड फ्रॉम द ऑडियंस साइड. सो एंड thank you for sparing your valuable wisdom and time. Now I request Swarnlata Saraf madam to please take it over and take the discussion in further mode. Saraf madam, please. नमस्कार. सर एक थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 1 मिनट में थोड़ा और ले सकता हूँ यहाँ पे. मुझे मैं उसको शेयर करना चाह रहा था, मालवीय जी से संबंधित था ही. तो आप जैसे जानते हैं प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के जिन्होंने स्थापना किया था, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके बारे में पता चला. तो BHU की स्थापना करने से पहले मालवीय जी गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास, कुछ क्वेरीज थी उनकी, कुछ आध्यात्मिक क्वेरीज थी पूछने के लिए. तो उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो इन्होंने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, इन्होंने सुन रखा था कि ये इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पॉलिटिक्स में भी है, एजुकेशन में भी है, और ये कुछ विशेष व्यक्ति हैं. तो फिलहाल उन्होंने सोचा कि अभी बात नहीं करते हैं, उन्होंने बातचीत नहीं किया उस समय पे. उन्होंने पूछा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उत्तर चाहता हूँ. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि किचन में भगवान के कुछ बर्तन है, भगवान के भोग लगे हुए तो बर्तन है, थोड़ा आप हेल्प कर सकते हैं उसे धोने में. जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो 13 साल बड़े थे आयु में इनसे, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा किचन में बर्तन धोने में हेल्प कर सकते हैं. उन्होंने कहा या श्योर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं भगवान की सेवा करूँ. वो अंदर गए, उन्होंने थोड़ा देर जो भी बर्तन वगैरह क्लीन किया, आधे घंटे बाद बाहर आए. तो इन्होंने पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कि हाँ मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, मैं बिजी था, क्या प्रश्न है आपका. उन्होंने कहा कि जब मैं बर्तन धो रहा था मुझे प्रश्न के उत्तर मिल गए. तो वहां पर जो उत्तर जो मिला इनको, क्या प्रश्न क्या था वो हम नहीं जानते. उत्तर ये है कि जब प्रैक्टिकल सर्विस वहां कर रहे हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, तो सर्विस करते हुए हमें कई सारे आंसर मिल जाते हैं जो कि पढ़ने में बहुत कठिन है, क्रूड है, फिलॉसफी बहुत कठिन है, बट प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सर्विस करेंगे, अपने आप वो सारे आंसर्स मिल जाते हैं. थैंक यू सर. ये जस्ट मैं आज ही मुझे पता चला. Your discussions, it is not going to help me on personal level, but it is going to help us at organizational level for sure. Madam, over to you. सो इस प्रोग्राम के एंड में हम बहुत गीता पर जो चर्चा है, ये मिथिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके होने से हम इन टॉपिक्स पर चर्चा कर पाए, और आज हम उसके महत्व को, ये जितने लोग यहाँ जुड़े थे उनके बीच में हम फिर से एक चर्चा का विषय इस पर रखते हैं.
तो सभी लोग इंटरेस्टेड थे, जितने क्वेश्चंस आए वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में कि गीता का महत्व है या नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जनरेशन जब हम देख रहे हैं कि वो गीता के महत्व को जानती ही नहीं है। तो महत्व तो है, सबके दिलों में है। इसको जो मालवीय जी ने जब शुरुआत की थी, उन्होंने कहा कि इनके दिलों से जाए नहीं बाहर, उनके दिलों में तो है, हमें फिर से जागरण की आवश्यकता है। इसलिए मिथिलेश जी जैसे यंगस्टर्स अभी हमारे यहाँ और होना जरूरी है, जो कि सर्विस के साथ साथ इसको बनाए रखें और हमारी सनातन जो परंपराएं हैं, मैं धर्म से नहीं जोड़ूंगी, सनातन परंपरा सबसे पुरानी परंपरा है, जो वर्ल्ड में सबसे पहली परंपरा है। उसी में हमारे विश्व को पीस मिलेगा और हम एक शांत स्वभाव से कल्याण, वासुदेव कुटुंबकम की हम जब बात करते हैं और कल्याण की बात करते हैं, जब कल्याण होता है तभी हम ये कर पाते हैं। वो सिर्फ गीता के उपदेश से ही हो सकता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए भी कृष्ण ने उनको कहा था कि अधर्म का नाश हो तो धर्म की रक्षा हो। ऐसा उपदेश जो दिया था, जो हमारे मन में है, ऑलरेडी है, उसको जागरण करना है। तो ये एक हमारा प्रयास था, जो बहुत दिनों बाद ये प्रयास शुरू किया। इसके पहले भी मालवीय मिशन में हम लोगों ने डेली पाठ करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आया और उसके बाद ये हमने फिर से शुरुआत की है। तो इस शुरुआत के लिए पहला इस सीजन में मिथिलेश गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रोग्राम के एंड में जो हमारी परंपराओं में कहा गया है कि किसी भी चीज का अंत हमें अपने श्लोक से करना चाहिए, जो कि बहुत ही सार्थक होगा यहाँ पर। और जो शांति पाठ है, मैं उसको बोलना चाहूँगी यहाँ पे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। थैंक यू। मिथिलेश जी धन्यवाद। धन्यवाद। मिथिलेश जी, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।